गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी इन द नेम ऑफ जीसस। मसीह यीशु के नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम और प्यार। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गुड मॉर्निंग टू द पीपल इन यूनाइटेड स्टेट्स, but good afternoon to the people in South Africa, and good evening to the brothers and sisters from Pakistan and India. May God richly bless you. And we have our sister Ingrid with us. So praise God, and she's going to be sharing from the Word of God how the Word of God is so important for our well-being, our health, for everything, from the spiritual point of view and all the way to our health. So praise God. You know, Word of God covers everything. So we welcome our sister Ingrid. So praise God, Sister Ingrid, you are here with us. So praise God. Hallelujah. Glory to Jesus. Open your microphone, please. You can do that. Hallelujah. Thank you, Jesus. There we go. Hallelujah. Good morning, everybody, and good evening to those that are on the other side of the world. और सबको शुभ का सलाम, और दूसरे जो दूसरी तरफ हैं यानी इंडिया पाकिस्तान में, उनको शाम का सलाम। It is Sunday morning here in the United States. यहाँ पर अमेरिका में संडे मॉर्निंग है। You know, the Word of God says that for lack of knowledge, my people are destroyed. खुदावंद के कलाम में लिखा है कि इल्म ना होने की वजह से मेरे लोग जो हैं वो तबाह बर्बाद होते हैं। And in 2 Peter, it tells us that knowledge is one of the things we need to add to our faith. और दूसरा पत्रस में लिखा है कि जो इल्म है हमने अपने ईमान में शामिल करना है, जानना इल्म। We add to our faith virtue or good moral character. और हम अपने ईमान में खूबियां और अच्छा इखलाक किरदार को शामिल करते हैं। And to our virtue, we must add knowledge. और हमने जो हमारे अंदर खूबियां हैं उसमें हमने इल्म को भी शामिल करना है। So we need to be always learning new things. और हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, नई नई चीजें जो खुदा हमारे सामने लाता है उनको सीखना है। But it's very important that we act on the knowledge that we take in. और ये बड़ा ही अहम है जो इल्म हम सीखते हैं उसकी प्रैक्टिस भी करें। Because if we only store up knowledge in our head, अगर हम सिर्फ आप ये जो इल्म है अपने दिमाग में ही जमा कर लेंगे, we're going to get a big fat head. और फिर हम गुरूर घमंड से भर जाएंगे। Because knowledge puffs up. क्योंकि जो इल्म है वो गुरूर पैदा करता है, But love edifies. लेकिन जो मोहब्बत है वो मजबूत करती है। So to our knowledge, we have to add self-control. और इल्म के साथ हमने परहेजगारी को शामिल करना है। Because once we learn something, we're responsible to act on it. और जब कुछ हम सीखते हैं तो हम इसके जिम्मेदार हैं कि हम उस पर अमल करें। We need to let that knowledge change our lifestyle. और हमने उस इल्म को इजाजत देनी है कि वो हमारी जिंदगी का जो तरीकाकार है उसको तब्दील करे। So today the message is entitled, Above All Things, God's Greatest Desire for Us. और सबसे जो आज का जो मजमून है उसका अन्वान जो है कि खुदावंद जो सारी चीजें हम करते हैं उसके ऊपर खुदावंद का क्या जो इरादा है, मंसूबा है। And the whole message is based on the third letter to John, verse 2. और ये जो तमाम जो मैसेज है उसका जो ये जो तीसरा यूहन्ना और उसकी जो दूसरी आयत है हम उसको पढ़ेंगे। Where John writes, Beloved, I wish above all things that you may be in health and prosper as your soul prospers. और यहाँ पर लिखा है John chapter what? It is the third letter of John. And I can read it. And ऐ verse प्यारे, 2. मैं ये दुआ करता हूँ कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है उसी तरह तू सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे।
John chapter, only one chapter, Yes. and Verse 2. verse 2. Yes. Mhm. Yes. Praise God. I want to share with you 5 things first. मैं आपके साथ 5 चीजें पहले शेयर करना चाहती हूँ, बांटना चाहती हूँ, Because I want to build your faith. और ये आपका ईमान मजबूत करेगा. And I want you to come away from this message absolutely convinced और आप इस मैसेज को सुनने के बाद पूरे तौर से मुतमईन हो जाएंगे that it's never the will of God for you to be sick, और आप ये जान जाएंगे कि ये खुदा की मर्जी नहीं है कि आप बीमार हो. and God wants so much for you to be healthy. He is going to be there to help you get to being healthy every step of the way. और ये खुदा की बड़ी मर्जी है, ख्वाहिश है कि वो आपको सेहत और तंदुरुस्त देखना चाहता है और वो आपकी मदद करेगा कि आप सेहतमंद और तंदुरुस्त रहें. So number 1, I've already shared with you, it's never God's will that you be sick. और पहली बात ये है कि ये खुदा की मर्जी नहीं है कि आप बीमार हों. Because the scripture we just read says that God wishes above all things for us to be healthy. और हमने जो पहली आयत पढ़ी है वो ये चाहता है, खुदा के चाहता है कि उसकी ख्वाहिश ये कि तू तरक्की करे सब बातों में और तू तंदुरुस्त रहे. And it says he wants us to prosper. और वो चाहता है कि हम तरक्की करें, खुशहाल हों. And that word prosper means to succeed in reaching a goal, for example. और ये जो खुशहाल है उसका मतलब है कि हम अपने जो गोल्स हैं ठहराए हुए उनमें उनको हासिल करने के लिए कामयाब हो, तरक्की करें. और In other words, he's going to help you make progress to become more and more healthy. और he's going to help you To make progress, to become more healthy, more healthy, more healthy. और वो आपकी मदद करेगा ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सेहतमंद रहें. Number 2, God is able and willing to help you overcome every challenge you face regarding your health. और खुदा आपकी मदद करेगा जो भी आपके सामने चैलेंजेस हैं जो आपकी सेहत के ताल्लुक से, ताकि आप जो हैं वो सेहतमंद हो रहें. I'm going to read to you 1 Thessalonians 5:23, and then Pastor Masih can read in Urdu. And It says, 1 Thessalonians 5 Thessalonians 5 and verse 23. Okay. And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God your whole spirit, soul, and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे, तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहें. तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा. Now he's the God of peace, so we don't have to worry about our health. और वो हमारा जो खुदा है वो इत्मीनान का खुदा है, शलोम का खुदा है, पीस का खुदा है, और हमें अपनी सेहत के बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है. Because he's going to sanctify us wholly. और वो हमें पूरे तौर से पाक करेगा. And that word holy means complete to the end, absolutely perfect. ये जो वर्ड होली है, WHOLLY, ये जो है इसका मतलब है एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूरे तौर से मुकम्मल करना. And that your whole spirit, soul, and body be preserved. और ये जो आपकी मुकम्मल जो रूह, जान और बदन है वो महफूज हो जाए. And the word whole means complete in every part and perfectly sound in body. और ये जो whole लफ्ज है, ये WHOLE, ये पूरे तौर से आपकी रूह, जान, बदन जो है वो महफूज है, सेहत में है और उनको कोई खतरा नहीं है. Number 3, this is going to be a process and you're going to need faith and patience. और ये जो तीसरा अमल है, ये एक लगातार अमल है जिसमें आपको ईमान की जरूरत है
और सब्र के साथ आपने काम करना है। You know, God does do miraculous healings. खुदा जो है वो मौजज़ाना तौर पर भी शिफा दे सकता है, But other times there are issues in our lifestyle that need to change in order for us to become healthy. और जो दूसरी बात है कि ऐसी बातें हमारी जिंदगी में होती हैं जो ऐसे जो तरीकेकार हमने अपनाए होते हैं उनको दुरुस्त होने की जरूरत होती है ताकि हम जो है सेहतमंद हो सके। And change takes time. और ये जो तब्दीली होती है ये इसको करने के लिए वक्त लगता है, वक्त दरकार है। If we think we're going to change our lifestyle in a day or two, I think we're going to be disappointed. अगर हम सोच रहे हैं कि हमने अपनी जिंदगी का जो तौर तरीका है बस 2 दिन में तब्दील कर लेना, तो हम इस बात को सोचते या ये ख्याल कर रहे हैं कि हो जाएगा, तो हम मायूस होंगे, क्योंकि ऐसा नामुमकिन है कि 2-3 दिन में तरीकाकार ठीक नहीं हो सकता, इस पर टाइम लगेगा। So it's important to have realistic expectations. और हमने हकीकत पसंद होना है और वही तवक्कुआत करें जो हकीकत पर मबनी है, ऐसे ख्वाब में ना बैठे रहें। We need to give ourselves time to learn and to apply what we are learning. और हमने सीखना है और जो कुछ हम सीख रहे हैं उसको हमने अपनी जिंदगी में लागू करना है। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ तर्जुमा जो है वो एक्स्ट्रा कर रहा हूँ ताकि जो है आप लोगों को बात जो है वो समझ लग सके। I'm just explaining that Yes. I am, not just interpreting, but I'm more explaining things. Oh, that's good. That they will understand. So you may say one line, but I will say 2-3 lines. That's okay. For people to understand what you're really trying to say. So Excellent. Praise God. So James chapter 1 verse 4 says that we need to have patience. And we need to let patience work in our lives. James what? James chapter Yakub ka khat? Chapter 1 and I believe verse 4. Chapter 1 verse 4 वो कहता है कि और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। So if we're patient, we're going to be perfect and entire and will lack nothing. और जब हम पूरे तौर से जो सब्र पूरे तौर से काम करेगा तो हम जो है वो कामिल हो जाएंगे और हम में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। And that's that same word. It means complete in every part and perfectly sound in body. और यहाँ पर जो लफ्ज है वो उसका मतलब है पूरा, मुकम्मल, किसी चीज की कमी नहीं है, रूह जान बदन बिल्कुल सब ठीक है। The fourth thing is that we build our faith by spending time with God in the Word and in prayer. और चौथी बात जो है वो हम खुदा के साथ अपना वक्त गुजारते हैं कलाम के वसीला से, दुआ के वसीला से। I'll read Proverbs 4 verses 20 through 22. ये Proverbs 4 starting verse 20. Hold on a second. Proverbs 4 starting verse 20 to 22, and I'll read in English first. My son, attend to my words. Incline your ear to my sayings. Don't let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart, for they are life to those that find them and health to all their flesh. ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा, उसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे, उसको अपने दिल में रख, क्योंकि जो उसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। You just read it from 20 to 22? Yes. Okay. Yes. So it says, attend to my words. That's reading the word. और अटेंड ये जो कहता है कि मेरे कलाम पर तवज्जो लगा, इसका मतलब ये है कि तू मेरा कलाम पढ़। And
incline your ear to my sayings, that's listening to the voice of the Holy Spirit. और ये जो कहते हैं कि जो मेरे कलाम पर कान लगा, इसका मतलब है कि हमने पाक रूह की आवाज को सुनना है. Sometimes if we're worried and stressed out, it becomes impossible to hear what the Holy Spirit wants to say to us. जब हम परेशान होते हैं, तंगी की हालत में होते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है कि हम खुदा जो पाक रूह की आवाज को सुन सके. So it's so important that we always spend time in the Word of God and in prayer. और ये बड़ा ही अहम बात है कि हम खुदावंद के कलाम को पढ़ने में वक्त गुजारें. And the last point, number 5. जो आखिरी जो पांचवा जो नंबर है जिसको हम सीखेंगे, that sometimes we get too focused on ourselves. We forget that we're supposed to be salt and light to people around us. और बाज़ दफा हम अपने आप पर बहुत ज्यादा तवज्जो देना शुरू कर देते हैं और ये बात भूल जाते हैं कि हमें रोशनी और नमक होने की जरूरत है उन लोगों के लिए जो हमारे इर्द गिर्द हैं. I'm going to read 3 scriptures, and after each one, Pastor Masih can read in Urdu. First one is from Isaiah 58. Is not this the fast that I have chosen, to loose the bands of wickedness, to undo the heavy burdens, to let the oppressed go free, and that you break every yoke? Is it not to deal your bread to the hungry, and that you bring the poor that are cast out to your house? When you see the naked, that you cover him, and that you hide not yourself from your own flesh, then your light will break forth as the morning, and your health will speedily spring forth. Isaiah 58 and verses 6 through 8. Okay. क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले? क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने ही हम जिन्स से रूपोशी ना करे? तब तेरी रोशनी सुबह की मानत फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी. तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा. So we see here that when you are busy doing the work of the kingdom, और जब आप जो है खुदावंद की बादशाहत का काम कर रहे हैं, getting people saved and filled with the Holy Spirit and baptized in water, और जब आप उनको बचा रहे हैं, बपतिस्मे दे रहे हैं, पाकरू के बपतिस्मे हो रहे हैं, सब इस काम में मशगूल हैं, and getting them delivered from demonic oppression, और जब आप उनको बदरूहों से आजाद करवा रहे हैं, and helping them overcome any practical needs that they have, और जब आप उनको अपने घर में ला रहे हैं ताकि उनकी जो कोई अमली जरूरत है उसको पूरा करें, God promises that your health will speedily spring forth. और खुदा कहता है कि जब आप ये सब काम कर रहे हैं तो फिर आपकी जो सेहत है वो जल्द आप जल्द तेजी के साथ सेहतमंद होंगे. So if we're doing all these things, we need to stand on that promise and not let Satan attack our health. और जब हम ये सब कुछ कर रहे हैं तो फिर हमने खुदा के इस वादे पर खड़े होना है और शैतान को इजाजत नहीं देनी कि वो हमारी सेहत पर हमला कर सके. And the other 2 scriptures, I'll just mention them, and you can read them on your own because this is just more of the same. Micah 6 verse 8. मीका की किताब उसका 6 बाब उसकी 8 आयत. And Matthew 25:35. और मत्ती की इंजील उसका 25 बाब उसकी 23 आयत. So this is our foundation. ये हमारा जो बुनियाद है. And now I want to share with you 10 principles that will keep us in good health. और मैं अब आपके साथ 10 ऐसी बातें शेयर करना चाहती हूं जो आपकी मदद करेंगे ताकि हम सेहतमंद रह सकें. And these come from a doctor. Her name is Dr. Lorraine Day. और ये एक डॉक्टर ने लिखी है और उसका नाम है लुवेन डे. She is an orthopedic trauma surgeon. और वो ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा सर्जन है.
and she was the chief of the orthopedic surgery department at San Francisco Hospital for 15 years. और वो जो सैन फ्रांसिस्को हॉस्पिटल ने वहां पर ऑर्थोपेडिक की जो थी वो हेड थी. So she's a very accomplished doctor. और ये बड़ी कामयाब किस्म की डॉक्टर है. Very accomplished surgeon. और ये बड़ी कामयाब किस्म की सर्जन भी है. Many years ago, she got very, very sick with a very aggressive cancerous tumor. और बहुत साल पहले उस ऐसा हुआ कि उसको बहुत बुरा किस्म का जो कैंसर था वो हो गया. She knew that chemotherapy, radiation therapy would destroy her immune system. और उसको पता था कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन जो है वो उसके इम्यून सिस्टम को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर देगी. Doctors know this. ये डॉक्टरों को ये पता है कि उनकी कुव्वत मुदाफत जो है रेडिएशन और कीमोथेरेपी से ये बिल्कुल तबाह हो जाता है. She decided not to do either of those. और उसने फैसला किया कि ये इनमें से कोई भी नहीं करेगी. She had to go on a very, very strict diet. और उसने फैसला किया कि वो एक खास मखसूस जो ग़िज़ा है वो ही खाएगी. And that is the first principle, is diet. और जो पहला अमल जो है वो है आपकी खुराक सही होना. In her case, she could only eat fresh fruits and vegetables and grains. और उसका जो वजह उसके हालात में उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो अच्छा था वो ताजा फल थे, सब्जियां थी और अनाज था. She would have 3 meals a day, and 75% of the food would be raw rather than cooked. और वो 3 खाने खाती थी दिन में, और जो 75% जो खाना था वो जो बगैर जो पकाया हुआ नहीं था, वो कच्चा होता था. जैसे सब्जियां और फल हैं ये कच्चे होते हैं. She was also drinking 14 glasses of fruit and vegetable juice per day. और वो 14 गिलास जो फ्रूट जो फल हैं और सब्जियों का जूस निकाल कर वो पीती थी. 14 गिलास हर रोज. Here in the United States, we can buy a machine that you can juice the fruits and the vegetables, putting them through the machine. It will extract the juice. और अमेरिका में एक मशीन है जिसमें हम सब्जियां और फल डालते हैं और उसमें से जूस निकल आता है. उस सब्जियों और फलों का जूस निकाल लेते हैं. And the reason for doing that is to get a very high concentration of the vitamins and minerals and enzymes that are in raw fruits and vegetables. और उसकी वजह ये थी, इसलिए कर रहे थे कि जो सब्जियों और फलों में जो विटामिन्स हैं और एंजाइम्स जो हैं और what else? मिनरल्स जो नमकियात हैं, जो वो सारा कुछ उसमें से सारा का सारा जो हाई कंसंट्रेशन, जो सबसे बड़ी जो शिद्दत की मिकदार में है चीजें हैं, उनको उसके जरिए से निकाल लिया जाए. And this is the medicine the body needs to heal itself. और ये एक तरह की दवाई है जो ये जो चीजें 3 एंजाइम और नमकियात और विटामिन जो हैं, ये एक तरह की दवाई है जिस्म के लिए, ताकि वो खुद ब खुद ही हील हो जाए, शिफा पा जाए. In our case, हमारे जो सिचुएशन, हमारे जो अभी हमारे हालत में या हम अपनी जिंदगी में, we need to make sure we eat plenty of fresh fruit and vegetables. और हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमें बहुत ज्यादा फल और सब्जियां खानी चाहिए. Because our body needs the vitamins and minerals and enzymes from those fruits and vegetables. क्योंकि हमारे जिस्म को बहुत शिद्दत के साथ जरूरत है कि वो विटामिन्स और नमकियात और एंजाइम की जो सब्जियों और फलों से मिलते हैं. We should eat our food in its natural state, the way God made it, as much as we can. और हमने जो सब्जियां और फल ऐसे खाने जैसे खुदा ने उनको बनाया, उसको प्रोसेस नहीं करना, उसको तब्दील नहीं करना, बल्कि जो वो जैसे वो हैं उनको वैसे ही खाना है. We want to avoid highly processed foods. और ये जो खाने ऐसे जो
जो फ्राई किए जाते हैं, जो किसी न किसी तरीके से प्रोसेस में चले जाते हैं, उनको हमने अवॉइड करना, उनसे दूर रहना है। White sugar, white flour, white rice. और ये जो सफेद चीनी है और सफेद आटा जो है, और what else? White rice. और ये सफेद चावल जो है, हमने इन सब से दूर रहना है। It has absolutely no nutrition in it. और इन तीनों चीजों में कोई भी ग़िज़ाइयत नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपकी सेहत के लिए अच्छी हो। It has calories, it will give you energy. ये इनके अंदर जो कैलोरीज तो है, आपको ताकत देंगी, but it will not give you nutrition. लेकिन इसके अंदर कोई ऐसी जो ग़िज़ाइयत नहीं, ऐसी चीज नहीं जो आपको जो सेहत के लिए, आपकी सेहत के लिए अच्छी हो। Eating too much of these things can make you overweight but still be malnourished. और ये जो चीजें आप बहुत ज्यादा खाएंगे, ये चीजें चीनी, जो सफेद चीनी है, सफेद आटा है, और ये सफेद राइस जो है, चावल है, ये आपको मतलब खाने से आपको मोटा तो कर देगी, लेकिन आपके अंदर कोई ताकत, वो सेहत वाली बात नहीं होगी। So as much as we are able to do, we should make sure we're eating as much fresh fruit and vegetable as possible. जो कुछ हमने खाना, हम इस बात का इरादा करें, तहैया करें कि हमने ताजा फल और ताजा सब्जियां ही ज्यादा से ज्यादा खानी चाहिए। There's three things that damage our immune system. तीन ऐसी चीजें हैं जो हमारे जो कुव्वते मदाफत का निजाम है उसको बर्बाद करते, खराब करती हैं, वो आपको बताना चाहते हैं। And the immune system being weakened is the cause, the reason for all diseases. और जब आपका कुव्वते मदाफती निजाम जो है, इम्यून सिस्टम जो है, जब आपका खराब हो जाता है तो सारा जिस्म, सारी बीमारियों को वो लाता है। And those three things are the malnutrition, dehydration, and stress. और ये तीन चीजें जो हैं वो पहली तो बात है कि अच्छी खुराक ना खाना, और फिर डिहाइड्रेशन, यानी आप अच्छे तौर से, पूरे तौर से पानी नहीं पी रहे, आपके अंदर पानी की कमी हो गई है, और फिर आप बड़ी परेशानी की हालत में स्ट्रेस ले रहे हैं बहुत ज्यादा, तो इस वजह से आपका कुव्वते मदाफत जो निजाम है या इम्यून सिस्टम है वो खराब होता है। So the first thing is diet for proper nutrition. और पहली बात जो है, जो आपने खुराक लेनी है उसके अंदर पूरी अच्छी ग़िज़ाइयत हो, अच्छी कुव्वत हो। The second thing is drinking plenty of water. दूसरी बात जो है कि हमने बहुत ज्यादा पानी पीना है। Let me give the example to them in हिंदी and उर्दू। पाकिस्तान में और इंडिया में और बांग्लादेश में जो पानी है वो बहुत ही खराब है, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज्यादा जहाँ कहा गया कि पानी पिए, तो आप कोशिश करें कि वो पानी उबाल कर पिए, तो बहुत ही अच्छा होगा। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया में जो आप बोतल का पानी पीते हैं, भाई कल कह रहे थे कि मैं बोतल का पानी पीता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि hold on a second, let me hold for a second, let me bring something. Okay, got it. Okay. ये मैंने पानी की बोतल पकड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ चीजें आपको नजर आ रही हैं, शायद आपको नजर आ रही है, नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये है तीन चीजें यहाँ पर दी गई हैं। एक तरफ एसिड है, नेचुरल है, और अल्कलाइन है, ठीक है। तो ये देखिए 0 से लेकर 6 तक जो है वो एसिड है,
और जो 7 नंबर है ये पीएच लेवल होता है, ये जो 7 है ये नेचुरल है, और अब 8, 9, 10, 14 तक ये जो है वो अल्कलाइन है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बहुत सारी जो पानी की बोतलें बाजार में मिलती हैं, अक्सर हम कहते हैं नेस्ले की बोतल या बिसानी या कोई भी जो है, जो भी आप पानी पीते हैं, वो उनका जो पीएच लेवल होता है वो हमेशा ही 2, 3, 4, 5 तक होता है। और वो जो पानी होता है वो एसिडिक, जो तेजाबियत उस पानी में होती है, और तेजाबियत होने की वजह से वो आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह है, वो आपकी हड्डियों के लिए नुकसानदेह है, वो आपके खून के लिए नुकसानदेह है, हर तरह से जो तेजाबियत जा रही है वो नेचुरल वाटर नहीं है। तो आप ये कर सकते हैं, अगर आपने करना क्या है कि आपने पानी जो है वो पहले उबाल लें, और अगर पानी जो है उबालने के बाद अगर आप उसमें थोड़ा नमक डाल लें या और कुछ थोड़ा सा, ये बड़ा अच्छा होगा, तो आप ये नेचुरल बना सकते हैं। लेकिन ये जो मोस्टली जो पानी बाजार में मिलता है, बोतल वाला पानी है, वो एसिडिक वाटर होता है और ये बड़ा ही खराब होता है। लेकिन अगर आप अल्कलाइन वाटर पिएंगे तो ये बड़ा ही अच्छा आपके लिए होगा, क्योंकि अल्कलाइन वाटर जो है वो आपके अंदर से कैंसर वगैरह को खत्म करता है। तो बड़ा ही जरूरी है कि आप अल्कलाइन वाटर पिए इंस्टेड ऑफ कोई भी जो पानी है, जो अच्छा वाला पानी है वो फिजी या एवियन का, या ये जो मैंने आपको बताया है वो अच्छा पानी है, वो अल्कलाइन वाटर है। दूसरे जो सारे के सारे पानी दूसरे हैं, दूसरी कंपनियों के, वो पानी खराब पानी है, वो आपकी सेहत के लिए अच्छे पानी नहीं है। तो इसलिए आपने क्या करना है, बेहतर यह है कि आप पानी को उबाल कर पिए। आमीन। और तीसरी बात, अगर आपको डिस्टिल्ड वाटर मिल सकता है तो आप डिस्टिल्ड वाटर लें। सो हाँ जी, प्रेज गॉड। ओके, गो अहेड। Amen. So I want to add, that's why we're working together. What is that? You can test your water. ये एक टिप होती है, स्ट्रिप होती है, तो आप उसमें डालकर पानी को आप टेस्ट कर सकते हैं कि ये आपका पानी का जो पीएच लेवल है वो क्या है। ये जो आपको स्ट्रिप सिस्टर दिखा रही हैं, तो ये आप पानी में डालकर उसका रंग जो है वो तब्दील हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि ये जो पानी आप पी रहे हैं ये एसिडिक है, या आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नंबर लगे हुए हैं। तो अगर आपका हाँ जी नंबर 7 नहीं होता तो फिर तो 7. ये आपका नंबर 7 है, तो ये बड़ा अच्छा है। लेकिन अगर इससे कम है, 6 है, 5 है, 4 है, तो फिर आप पानी जो पी रहे हैं वो आपकी हड्डियों के लिए, आपके अंदर वो कैंसर पैदा करेगा। Yeah, the pH is important. तो ये जो पीएच लेवल है वो बड़ा ही अहम बात है। तो I am thankful we have a well. और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि हमारे घर में एक कुआं है, हमने कुआं खोद रखा है। And our well water is good. ये कुएं वाला पानी जो है वो बड़ा अच्छा है। लेकिन let me explain to them what is going on in Pakistan and India. पाकिस्तान और इंडिया में हो रहा ये कि आपने घरों में वो जो टॉयलेट्स हैं बनाए हुए हैं वो गड्ढे खोद लेते हैं, और जब मतलब गड्ढे खोदे होते हैं तो आपके जो क्या कहते हैं फुजलात जो है, जो क्या कहते हैं पूप जो है वो मिट्टी में जाती है, और वहीं से दूसरी जगह पर थोड़ी दूरी आपने लगाया होता है हैंडपंप या ये वो कुआं लगाया, तो वो पानी जो पूप और पानी मिक्स हो जाता है, और वही आप लोग बहुत सारे जो लोग देहातों में शहरों में पी रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तकरीबन मैंने देखा कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो आधे से ज्यादा लोगों को हेपेटाइटिस सी हुई है पाकिस्तान में। हाँ जी, और ये क्यों है
क्योंकि ये कोई जिनसी अमल के हिसाब से नहीं, बल्कि वो पूप जो है, वो जो आपकी टट्टी है, जो आपकी गंद है, जो 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 आपने लैट्रीनें लगाई हुई हैं घरों में, तो वो आप जो नलके का पानी जिस तरह से जहां से भी पानी करीब करीब से पीते हैं, तो वो उसमें चली जाती है, और उसमें जाने की वजह से आप जो है वो बीमार रहते हैं। बहुत सारे लोग, जब मैं पाकिस्तान गया हूं तो वहां पर कहते हैं कि पास्टर जी दुआ करें हमारे लिए, ताकि हम हमारे पेट में खराबी है, पेट में बहुत सारी खराबियां होती हैं, और ये जो हेपेटाइटिस सी जो है इसी की एक वजह है। सो इसलिए जरूरी है कि आप पानी को उबाल कर, सही तरह से उबाल कर पिए। आमीन। Amen. ओके, गो अहेड। Amen. Are they able to get a water filter? Yes, they can, but again, in those nations, everything is aftermarket and mostly fake. Oh, because it's I understand that maybe not everybody has access to pure fresh water. Yes. मैंने बहन को बताया कि हमारे जो दूसरे ममालिक हैं, जैसे इंडिया और पाकिस्तान है, उनमें जाली चीजें जो हैं, जाली फिल्टर, ये सारा कुछ, वो कहते हैं कि ये बड़ा अच्छा है, लेकिन होते सारा काम जाली होता है। तो लोगों को बेवकूफ बनाया होता है। जाली दवाइयां मिलती है, जाली सब कुछ, 2 नंबर सारा काम चलता है। तो वहां पर लोग जो हैं इंडिया पाकिस्तान में, वो जो दवाइयां वाले हैं, उनको नहीं परवाह कि कोई बंदा मरे या जिए, उनको पैसे चाहिए बस। जो फिल्टर वाले, उनको भी यही चाहिए कि बंदे मरे या ना मरे, सानू की परवाह, सानू तो पैसे चाहिए। ये लोगों के लिए कोई उनके अंदर फिक्रमंदी नहीं है। तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि हम पानी जो है उबाल कर पिए तो बेहतर होगा। हाँ जी, So we do the best we can do with what we have available. जो कुछ हमारे पास मौजूद है, हम उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें जो कुछ है, and we trust God for the rest. और हमने बाकी जो है खुदावन पर एतमाद करना है कि खुदावन जो है उसको करे। और अब ये देखते हैं कि अगर आप कैंसर से बचना चाहते हैं, तो पहली बात तो ये जो मैंने आपको पानी दिखाया। दूसरी बात ये है, जैसे बहन ने बताया कि वो 14 गिलास हर रोज सब्जियों के जूस के और फलों के जूस के पीती थी। ये नहीं कि कोको कोला दिया बोतला पाई है, ये मुंह चलने दे काम है, कोक पीवे चाहिए थे, पेप्सी दे और स्प्राइट भी ले आओ। नहीं, ये ऐसे नहीं हमने करना, बल्कि हमने अपनी जो खुराक है उसमें बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना है। हाँ जी, आमीन, Amen. आमीन। So the third point is right along with what Pastor Masih was saying about soda. और तीसरी बात जो है वो सोडे के बारे में है। It's self-control. ये जो सेल्फ कंट्रोल है, आपने परहेज करना है। How many we cover? How many we cover? First one was what? So number 1, nutrition. Number 2, water. दूसरी बात जो पानी आपने पीना है, और तीसरी बात Number 3, self-control. आपने परहेज करना। परहेज बड़ा जरूरी है। ये नहीं कि आप बीमार है तो आप ऐसी चीजें खाएं जो बिल्कुल खराब है और आप कहें कि मैं सेहतमंद हो जाऊं, तो ऐसा नहीं होगा। परहेज बड़ा करना है। Sugar is very addictive. और ये जो चीनी है, ये एक तरह का नशा है। If we've been eating a lot of sugar, we need to stop doing that. अगर हम बहुत ज्यादा चीनी खा रहे हैं तो हमने इसको खत्म करना है, छोड़ना है। So we need to exercise self-control to start to change our habits. और हमने इस पर पूरे तौर से परहेजगारी करनी है और इस आदत को, जो खराब आदत है, उसको बदलना है। To cut down and eliminate things that are bad for us. और उनको खत्म करना है, और उन तमाम चीजों को अपनी जिंदगी से दूर करना, अपने से बदन से दूर करना जो हमारे लिए नुकसानदेह है। And replace those things with the things that are good for us. I'm sorry? Oh, okay. और वो चीजों के साथ उनको बदल दें जो हमारे लिए अच्छी हैं, और replace
तो उन चीजों को लें जो हमारे लिए अच्छी, ये नहीं कि वही खराब चीजें आप खाते रहें। If I am used to eating candy and cookies and cake, अगर मेरी आदत है कि कैंडियां खाऊं, केक खाऊं, कुकीज खाऊं, ये बिस्किट वगैरह जो है ना, ये सारे मीठी मीठी चीजें हैं, मिठाइयां खाऊं, जलेबियां खाऊं, लड्डू खाऊं, गुलाब जामुन खाऊं, ये सारे मैं इसलिए मैं बर्फी खाऊं, ये सारे मैं इसलिए इंडिया के लफ्ज बोल रहा हूं तो आपको पता चलता है। I'm using Indian and Pakistani candies name. popular one. ये सारी चीजें, तो ये आपने रुकना है इनसे। हाँ जी। Yeah. Then if I'm used to eating all that sugar, then fruit will not taste very sweet to me. और ये सारी चीजें जब मैं ये जो सारी जलेबियां वगैरह कह रहा हूँ, बर्फियां, ये सारा कुछ खा रहा हूँ, तो फल जो है मुझे मीठे नहीं लगेंगे, वो फीके फीके लगेंगे, फायदा नहीं होगा धंधा। It's going to take a little time for my taste buds to change. और ये मतलब कुछ टाइम लगेगा कि आपके जो अंदर जो टेस्ट बड हैं, जो आपकी टेस्ट देते हैं कि क्या कौन सा मजा है, तो ये कुछ टाइम लगेगा कि आपके जो टेस्ट बड है वो चेंज हो जाएंगे, दोबारा ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपने उनको खाना बंद करना। जान जी, पास्टर जान साहब, you need to quit all those things. That's the challenge. Yeah. Also caffeine, if we're drinking too much tea or coffee, caffeine dehydrates us. और ये जो काफी और चाय जो ना, ये हमारे अंदर से पानी की कमी है, हमारे अंदर पानी की कमी पैदा करती है, ये बड़ी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। Every cup of coffee or tea you drink, you lose 2 cups of liquid. और जब एक कप या एक चाय का कप या एक कॉफी का कप पीते हैं, तो आपके अंदर से ये 2 कप जो है लिक्विड को खत्म कर देता है। तो आपने चाय और कॉफी पीना बंद करना है। Yeah. If you're drinking a lot of coffee and tea, you are dehydrating yourself. अगर आप बहुत ज्यादा चाय और कॉफी पी रहे हैं, तो आप अपने अंदर पानी की कमी को पैदा कर रहे हैं। So we want to be very moderate in the use of caffeine. और हमने थोड़ी सी पीनी है, ये नहीं है बहुत ज्यादा। पाकिस्तान और इंडिया में चाय तो बगैर तो गुजारा ही नहीं ना। हाँ जी, बिना चाय के तो शौचालय, बिना चाय के टॉयलेट ही नहीं जाते। हाँ जी, चाय ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਚਾय ਦੇ ਨਾਲ 10 ਵਜੇ ਚਾय, 12 ਵਜੇ ਚਾय, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਚਾय, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਾय, ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਾय। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਓ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਬਾਜ਼ ਆਵੋ ਚਾय ਪੀਣ ਤੋਂ, ਚਾय हर टाइम चाय। Stop drinking chai. So I learned that dehydration is what really causes allergies. और मैंने सीखा है कि ये जो पानी की कमी होती है हमारे अंदर, ये हमारे एलर्जी का सबब बनती है। जो एलर्जीज वगैरह होती है ना हमें, वो पानी की कमी की वजह से होती है। And when I learned that, I stopped drinking tea because I've had a lot of trouble with allergies. जब मैंने इसको सीखा तो मैंने चाय पीना बंद कर दिया और पानी पीना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे बड़ी एलर्जीज होती थी। And now I'm drinking a lot of water instead of the tea. और अब मैं बहुत सारा पानी पीती हूँ बजाय चाय पीने के, तो मैं भी पानी पी रहा हूँ। हाँ जी। And I'm already feeling better. और मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। Okay, number 4, number 5, and number 6. और 4, 5 और 6 नंबर जो हैं हम उसके बारे में सीखेंगे। Number 4 is exercise. Number 5 is daily sunlight. Number 6 is fresh air outdoors. और number 4 is exercise. Exercise. हमने एक्सरसाइज करनी है, वर्जिश करनी है, और चलना फिरना। ये नहीं कि 10-12 पराठे खा के तो बह रही है थे। हाँ ये अक्सर होता ही है कि हम
सुबह कहते हैं पराठा ही खाना, पराठे के बगैर तो मैं नंगदी नहीं ना कुछ है, you know. और let me share a joke with you guys. You know, one of the guy, he was traveling here in the West, the Indian guy, and he was on the plane. He have his bottle of lassi. Okay. The flight people ask him, "What is this?" He said, "This is a drink India." You know, drink India. Oh, they said, "Wow, that's nice." Then he opened his bag and he got the mooli parathas. Okay, several mooli parathas. And you know the mooli smell? So the smell of mooli spread all over. And he said, well, the people asked him, "What is this? What are you eating?" He said, "It's a food India." Okay. He said, "It's a food India." And then after hour or so, then he started releasing the air from the bottom. And people asked him, "What is this? It's really crazy." He said, "This is the Air India." That's terrible. Oh, goodness gracious. ये नहीं है कि you know, दो चार मूली पराठे खा के लेटे रहे और के बाद में कह के ये एयर इंडिया या एयर पाकिस्तान है, ये नहीं करना, बल्कि कोशिश करे कि दलियां मक्खन वालियां पा पा के पराठे नहीं बनाने, सुक्की रोटी खाओ. आमीन. Amen. So praise God. Okay. Praise the Lord. So I'm trying to should I translate that that joke in okay, let me translate. एक भाई साहब थे, उन्होंने ट्रैवल कर रहे थे जहाज में, तो यहाँ पर तो उन्होंने ना एक बोतल थी वो लस्सी की, तो पूछते हैं फ्लाइट वाले पूछते हैं कि ये क्या है भाई, तो वो कहता है कि ये ड्रिंक इंडिया है, इंडिया का ड्रिंक है. तो वो कहते हैं अच्छा. थोड़ी देर के बाद उसने मूली के 4-5 पराठे निकाले, और मूली की स्मेल आपको पता है बहुत ज्यादा फैलती है, तो वो खाने शुरू कर लिए. और क्या हुआ, और 2-3 घंटे के बाद उसने वो अपना काम शुरू कर दिया मूली वाले पराठों ने, तो सारी गैस फैलनी शुरू हो गई. तो वो पूछते हैं कि ये क्या है भाई, तो कहता है ये एयर इंडिया है, ये इंडिया वाली हवा निकल रही है. तो ये मैंने अंग्रेजी में आपको बताया था पहले. तो अब तो ये नहीं कि हम 14-15 पराठे खा के थे, ये नहीं करना हमने, बल्कि थोड़ी रोटी खाएं, ये नहीं कि बहुत डप ठप के खा लो तो सुते रहो. आमीन. Amen. Praise God. So go ahead. Next. So exercise, it increases the circulation and the oxygen level in the blood. और ये जो हम वर्जिश करते हैं, ये हमारे खून में ऑक्सीजन जो है बढ़ाती है, और हमारा जो खून है उसकी गर्दिश को भी सही करती है. Eliminates toxins. और ये हमारे अंदर जो टॉक्सिन से मुराद है जो जहर है, जो खराब खाने की वजह से हमारे अंदर जो आ जाती हैं, वो जहर है, उनको खत्म करती है. It lowers blood pressure. और ये हमारे अंदर जो ब्लड प्रेशर है उसको नीचे करती है, लोअर करती है. Increases production of growth hormones. और जो हार्मोन्स हैं जो हमारे अंदर सही होने चाहिए, उनको बढ़ाती है. And it builds up your immune system. और ये हमारा जो कुव्वे मुदाफत का निजाम है, इम्यून सिस्टम है, उसको मजबूत करती है. When you exercise enough so you're breathing hard. और जब आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो आप जो है वो
ज्यादा जोर जोर के सांस लेते हैं, या you're getting lots of oxygen into your bloodstream. और आप जो है इस वजह से आपके अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन जा रही है, आपके जो खून के अंदर जो ब्लड स्ट्रीम है उसके अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन जा रही है। And cancer can't live in a high oxygen environment. और ये जो कैंसर है, अगर आप हाई ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रख दें तो कैंसर जो है वहां पर खत्म हो जाए। एक और बात मैं आपको करना चाहता हूं, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ऐसा करें कि आप ऑक्सीजन चैम्बर्स में जाएं और हफ्ते में 2 या 3 दफा ऑक्सीजन चैम्बर में रहें, तो वो आपका जो कैंसर है वो एलिमिनेट हो जाएगा। I'm just telling that, if you guys can afford, find an oxygen chamber and go and stay there for a few hours, 2-3 times in a week, the cancer will be eliminated. Amen. Amen. Praise God. So daily sunlight. और हर रोज जो है हमने धूप में बैठना है। That's number 5. ये 5वीं बात है। It helps build the immune system. ये आपका जो कुव्वत मुदाफत का निजाम है उसको मदद करेगा ताकि उसको मजबूत करे। It calms the nervous system. और ये जो नर्वस सिस्टम हमारा होता है, lowers the blood pressure. ये हमारे नर्वस सिस्टम को जो है वो इत्मीनान सुकून देता है और ब्लड प्रेशर को भी वो भी नीचे करता है। And it helps you handle stress better. और ये आपकी मदद करेगा ताकि आप जो परेशानी वगैरह होती है, स्ट्रेस होती है, उसको हैंडल बेटर तरीके से कर सके, बेहतर तरीके से कर सके। And it even reduces the size of internal cancerous tumors. और जब आप धूप में बैठते हैं तो अंदर जो आपके अंदर जो कैंसर का जो होती है ना गिल्टी, उसको घटाता है। अगर आप अंदर ही बैठे रहेंगे तो धूप में ना जाएंगे तो ये आपके लिए ज्यादा खतरनाक है। तो आप धूप में चलना फिरना शुरू करें ताकि आपके लिए अच्छा हो, सेहत के लिए अच्छा हो। And fresh air outdoors, number 6. और जो नंबर 6 बात है, जो हमारे जो बाहर ताजा हवा में बैठना, ताजा हवा में चलना फिरना, ये बड़ा जरूरी है। Again, this is increasing the oxygen in your bloodstream. और ये भी हमारे जो खून में जो ऑक्सीजन की जो कमी होती है उसको हमने इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, ऑक्सीजन को बढ़ाना है। और ये जो जब ऑक्सीजन बढ़ेगी खून में तो फिर हमारे अंदर जो कैंसर वगैरह होता है खत्म होता जाएगा। ऑक्सीजन का चक्कर बहुत जबरदस्त है। Cancerous tumors grow twice as fast if you just breathe indoor air. जो कैंसर की जो ट्यूमर है, जो गिल्टी है, वो अगर आप ताजा हवा में सांस लेना शुरू करेंगे और ज्यादा से ज्यादा ताजा हवा में रहेंगे तो आपकी जो कैंसर की जो गिल्टी है वो कम से कम जल्दी कम होती जाएगी। Mm-hmm. You can take care of all 3: exercise, sunlight, and fresh air. और आप जो तीनों जो है वो जो एक्सरसाइज वर्जिश जो है और धूप में बैठना और ताजा हवा में रहना, आप तीनों एक दफा ही कर सकते हैं। Just go for a nice long walk every day. और हर रोज एक लंबी वॉक के लिए चले जाएं। And walk briskly. और आप तेजी के साथ चलें। So that you get your heart and your lungs working hard. और आप ताकि आपके जो फेफड़े हैं और जो दिल है वो ज्यादा से ज्यादा काम करे। And this is very, very good for you. और ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। Number 7, proper rest at the proper time of night. और ये जो है आप मुकम्मल तौर पर जो सही वाली रेस्ट है ना, जो सोना है, वो भी जो रेस्ट होता है, I don't know क्या कहते हैं, what they say rest in हिंदी? आराम करना, या आपको सही तौर पर आराम करने की भी जरूरत है। So you can't repair a car while you're driving it.
आप जो कार है, कार कभी चलाते हुए आप कार फिक्स कर सकते हैं कि आप कार का हुड खोल के उसके अंदर से कोई प्लग ठीक ठूक कर लें। जब आप कार चला रहे हैं तो वो ठीक नहीं हो सकती। आपने कार को ठीक करने के लिए कार को रोकना है, फिर आप कार को दुरुस्त कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने जिस्म को दुरुस्त करने के लिए आपको आराम की भी जरूरत है, और वो सही टाइम पर आराम करने की जरूरत है। The only time your body can repair and rebuild itself is while you're sleeping. और वही एक वक्त होता है जब आपका बदन जो है वो सही तौर पर काम कर सकता है, और उसको जो हमारे जिस्म में सेल जो हैं जब टूटते हैं बनते हैं, टूटते हैं बनते हैं, तो खास तौर पर जो हमारे जब सोते हैं तो हमारे दिमाग में एक वर्कशॉप का सिस्टम होता है जो हमारे दिमाग जो है उन सेल्स को हुक्म देता है कि वो आपके जो बदन में जो टूट फूट है, तोड़ फोड़ हुई है, उसको रिपेयर कर दें। जब आप उठेंगे तो वो सारे के सारे रिपेयर हुए होंगे। The hours between darkness and midnight are twice as important as the hours from midnight to daylight. Let me say it again. The hours from darkness to midnight are twice as important for sleep as the hours from midnight to daylight. Okay, ये जो सबसे अहम सोने वाले जो घंटे हैं वो डार्कनेस से मिडनाइट तक जो है, यानी आप 9 बजे 9 PM, Yeah. 10 to midnight, ये जो आवर है 2-3 घंटे, 9 to 12 PM, 12 AM, Yeah. ये 9 बजे से लेकर शाम के 9 बजे से रात के 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे जो घंटे हैं वो 3 घंटे बहुत ही अहम है। और कई लोग जो हैं वो बयान बता रही कि 12 बजे से सुबह तक के जो घंटे हैं वो इतने अहम नहीं होते आपके बदन के लिए। बहुत सारे जो लोग हैं उनका तो दिन ही चढ़ता है रात के 11 बजे। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जो सुबह का नाश्ता करते हैं 12 से 1 बजे के 2 बजे के दरमियान, और शाम का जो होता है वो शाम का वो करते हैं शायद 5-6 बजे, और फिर रात का जो करते हैं वो क्या करते हैं 11 से 12-1 बजे तक तो वो खाने पीने में लगे रहते हैं, और सोते कितने बजे हैं? 2-3 बजे, 2-3 बजे सोते हैं। और अगर ये सोएंगे इस वक्त तो कैंसर नहीं होना था, फिर क्यों होना है? हाँ जी, कैंसर तो होगा, हड्डियों में दर्द होगी, जोड़ों में दर्द होगा, सारी बीमारियां होंगी, सारी दर्दें होंगी, इसलिए कि आप वक्त पर सो नहीं रहे। हाँ जी, go ahead. So many times we are up late because of ministry. और बहुत दफा कई हम sometimes I see some people not they up late for the ministry, they're just so stupid. That's the point. Sometimes you have to be up late, but most of the time you don't want that to be the rule. That should be the exception. आप ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक कानून नहीं बना दिया हमने कि ये ही करना। कई दफा मिनिस्ट्री की वजह से लेट सोना पड़ता है। So as much as you're able, get to bed early. Early to bed, early to rise, as much as you can. और ये बता रही हूँ कि आपने ये पूरी कोशिश करें कि आप जल्द सोएं और जल्द सुबह उठें। And number 8, number 9, and number 10. और 8 और 9 नंबर और 10 नंबर जो है, 8 is trusting God. आप खुदावन पर तवक्कल करें। 9 is thankfulness. और खुदावन की शुक्रगुजारी करें। नामा नंबर। Number 10 is benevolence. How you say benevolence? Benevolence is helping those who can't help themselves. Oh yeah. और आपने लोगों की मदद करनी है जो अपनी मदद आप नहीं कर सकते, मदद करनी है। ठीक है। So if we're trusting in God, we're not going to be stressed out.
और जब हम खुदावंद पर तवक्कल करेंगे तो फिर हम जो है वो परेशान नहीं होंगे, हम बोझ के नीचे नहीं होंगे। If we're thankful to God, we're going to be happy. और जब हम खुदावंद के शुक्रगुजारी करेंगे तो फिर हम खुश रहेंगे। And a merry heart does good like a medicine. और ये जो खुश दिल है वो एक तरह का दवाई है। We already read in Isaiah 58 that when we help those who can't help themselves, we get healthy. और जब यशायाह की किताब उसका 58 बाब में पढ़ा है, जब हम उन लोगों की मदद करेंगे जो अपने तौर से अपनी मदद नहीं कर सकते, तो हम उसका फायदा हमें होगा क्योंकि हम सेहतमंद रहेंगे। So those are the 10 principles for good health. और ये 10 कानून हैं, 10 असूल हैं अगर आप सेहतमंद जिंदगी गुजारना चाहते हैं। A nutritious diet, और ये जो आपकी जो खुराक है उसके अंदर ग़िज़ाइयत होनी चाहिए, plenty of pure water, और बहुत सा जो खालिस पानी आपने पीना है, self-control to change our bad habits, और हमने जो परहेजगारी करनी है ताकि जो हमारी बुरी आदत है हमें पड़ी हुई है उनको कंट्रोल कर सकें, exercise, sunlight and fresh air, और हमने वर्जिश करना है और सूरज में चलना है, और एक्सरसाइज, सनलाइट एंड और ताज़ा हवा में आना है। ठीक है।